کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو کشتی کہا ہے اور اپنے صحابہ کو ستارہ کہا ہے. کیا بات ہے. اہل بیت کشتی ہے اور صحابہ ستارہ ہیں. اہل بیت کشتی ہے اور صحابہ ستارہ ہیں. اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ سے رہنمائی حاصل کرنا ایمان کا تقاضا ہے. لہذا عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ دونوں اپنی جگہ برقرار ہیں. بنگلور میں سید محمد نور میاں اشرفی کا بیان. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت عظیم الشان عظمت اہل بیت کانفرنس کا انعقاد. ملت میں اختلافات، انتشار، خلفشار پھیلانے والوں کو منہ توڑ جواب. جی ہاں دوستو، بنگلور کے امبیڈکر بھون میں 4 جولائی بروز ہفتہ یہ یادگار کانفرنس ہوئی، اور یہ کانفرنس ان لوگوں کے منہ پر تماچا تھی جو ملت کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ملت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ملت کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جودھ پور سے بنگلور آئے آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث اعظم نور دیدہ مخدوم سمنا علامہ مولانا سید محمد نور میاں اشرفی نے اپنے خطاب نایاب میں موجودہ حالات کے پیش نظر ملت کو اتحاد کا پیغام دیا، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا. دوستو، الحاج عتیق احمد کی قیادت میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہر سال شہر بنگلور میں عظمت اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کرتا ہوا آ رہا ہے. ہر سال یہ کانفرنس بنگلور کے قدوس صاحب عیدگاہ میں ہوا کرتی تھی. منتظمین نے اس بار بھی قدوس صاحب عیدگاہ میں اس جلسے کو منعقد کرنے کا فیصلہ لیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اجازت نہ ملنے کے سبب امبیڈکر بھون میں یہ کانفرنس ہوئی. نہ صرف کرناٹک بلکہ دیگر ریاستوں کے علماء کرام، مشائخین اعظام، صوفیاء کرام کثیر تعداد میں کانفرنس میں شامل ہوئے. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین الحاج عتیق احمد چشتی اور سیکریٹری اسماعیل خان کی کوششوں، خدمات کی ستائش کی اور کہا کہ مسلسل 14 سال سے اعلیٰ پیمانے پر عظمت اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کرنا ایک بڑا کارنامہ ہے. 14ویں عظمت اہل بیت کانفرنس کے مقرر خصوصی مولانا سید محمد نور میاں اشرفی کے خطاب نایاب سے سبھوں نے استفادہ کیا، اور اس موقع پر تمام شرکاء کے لیے لنگر امام حسین کا بڑے پیمانے پر نظم کیا گیا. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. اس مرتبہ بھی اعلیٰ پیمانے پر ایک کانفرنس ہوئی ہے، تو موجودہ جو حالات ہیں اس کے پیش نظر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج 4 جولائی 2026 کو سیدہ زینب ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے الحاج عتیق قادری صاحب کی نگرانی میں سید خلیق اشرف صاحب کی صدارت میں یہاں امبیڈکر پارک میں امبیڈکر بھون میں عظمت اہل بیت کانفرنس 14ویں لگاتار عظمت اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس طرح کی کانفرنس جو منعقد کی جاتی ہیں اس کا اصل مقصد ہوتا ہے پیغمبر امن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے کس قدر صبر کے ساتھ اور مصیبتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی گزاری ہے، اس کو پڑھا جائے، سنا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے، تاکہ آج ہنگامی ماحول میں اس بے قراری والی زندگی میں بھی ان لوگوں کی مصیبتوں کو دیکھ کر اپنی مصیبتیں چھوٹی محسوس ہوں، اور بندہ قیامت کربلا کو سننے کے بعد، قیامت صغریٰ کو سننے کے بعد کم سے کم اس چیز کا خیال کرے کہ جب وہ لوگ اتنی مصیبت جھیل کر بھی اللہ رب العزت کے شکر کو ادا کرتے رہے، اللہ رب العزت کے حکم پر راضی رہے، تو ہمیں بھی ناشکری سے بچنا چاہیے. حلال کما کر، حلال کھا کر اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارنی چاہیے. انسانیت اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی سنت کے مطابق غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کے لیے سبیل کے انتظامات کرنا، یہ تمام چیزیں ہمیں کربلا شریف سکھاتی ہے.
मैदान करबला से हमें ये सब हम सबको वफा का, मोहब्बत का और दीन की खिदमत का जो पैगाम मिलता है उसको आम करने के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अतीक भाई सजाते हैं ताकि इस पैगाम को पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जा सके और पूरी दुनिया में अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश की जा सके। मौजूदा दौर में इख्तलाफात हैं, इंतशार की कैफियत है, वो कैसे दूर हो सकती है? इख्तलाफात हर दौर में रहे हैं और कोई भी दौर इख्तलाफ से तकरीबन खाली नहीं रहा है। इख्तलाफात को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने हिज़्ब मुखालिफ के हवाले से खामोश रहिए। आपका जो मौक़िफ़ है आप उस अपने मौक़िफ़ का ऐलान कीजिए, लेकिन हक़ानियत अगर आपको चाहिए तो आपको तलाश करना पड़ेगा। और हमें इस इख्तलाफ के दौर में ये देखना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों का, यानी शहनशाह बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर का, हुज़ूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ का, हज़रत सरकार क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी का, हज़रत महबूब इलाही हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का, इन लोगों का मौक़िफ़ और मसलक और रास्ता क्या था। इख्तिलाफ की इस आंधी में अपने बुजुर्गों की ज़िंदगी को जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए अपने बुजुर्गों के मिशन पर एक हो जाइए, इख्तिलाफात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो इंतशार भी पैदा किया जाता है और टकराव की भी कैफियत पैदा करने की कोशिशें होती हैं, तो ये कितने नुकसानदेह हैं मिल्लत इस्लामिया के लिए? मैंने अपनी गुफ्तगू में इशारतन ये बात कह दी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहले बैत को कश्ती कहा है और अपने सहाबा को सितारा कहा है। पुराने दौर में जब सफ़र होता था तो गूगल मैप नहीं था। उस दौर में कश्ती में जब कश्ती अंधेरे में चलती थी तो लोग सितारे से राह तलाश करते थे, किस सितारा किधर से तुलू होता है और किधर गुरूब होता है। ये जानकारी पुराने लोगों के पास थी, तो सितारे के बगैर कश्ती चल ही नहीं सकती थी, वो रुक जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही बता दिया कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो कश्ती तो अहले बैत की होगी, सवार आपको इसमें होना है, लेकिन आपको रहनुमाई जो देते रहेंगे वो सहाबा देते रहेंगे। तो रहनुमाई सहाबा किराम से लेनी है और रहनुमाई लेंगे तो मोहब्बत होगी, तभी आप रहनुमाई लेंगे। किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर कैसे रहनुमाई उसकी हासिल करेंगे? पहले मानेंगे तब तो उसकी मानेंगे, जब उसको ही नहीं मानेंगे तो उसकी कैसे मानेंगे? अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को, जैसा कि मैंने गुफ्तगू में कहा, कि अगर इनकी ज़वात को भी मुख्तलफ़ी कर दिया जाता है तो फिर कोई खड़ा होकर कह देगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन की वुज़ू ऐसे नहीं ऐसे होता है, फलां साहबी ने गलत बता दिया, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? सिर्फ मसला सिर्फ अहले बैत का नहीं है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की नामों की हिफाजत करना भी हमें आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इसलिए अहले बैत अपनी जगह है, सहाबा अपनी जगह है। अहले बैत घर वालों को कहते हैं, सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों और गुलामों और दर वालों को कहा जाता है। हाँ, घर वालों में भी सहाबा हैं और सहाबा में भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार हैं। हज़रत सरकार अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 4 मशहूर खुलफाए 4 यार हैं, 2 हुज़ूर के ससुर हैं, 2 हुज़ूर के दामाद हैं। हज़रत अबू बकर हुज़ूर के ससुर हैं, हज़रत उमर हुज़ूर के ससुर हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी आयशा सिद्दीक़ा हुज़ूर की ज़ौजा है, हमारी आपकी सबकी माँ है। हज़रत उमर की बेटी हफ्सा बिन्त उमर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा है। तो आप हुज़ूर के ससुर को क्या कहेंगे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों का ख्याल करना है तो हुज़ूर की रिश्तेदारियों का भी ख्याल करना है। अल्लाह पाक हमें और आपको मसलक अहले सुन्नत पर इस्तिक़ामत दे। वाज़ेह पैगाम आप इख्तिलाफात हैं कैसे हल हो सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं? तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और इससे नुकसान जो है मिल्लत को ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका क्या मौक़िफ़ रहा है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन? अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम लोग बहुत एजुकेटेड हैं और सिर्फ बयान सुन के अगर ईमान बनाना है तो दुनिया में ये सही रास्ता नहीं। अगर आप जाके जितनी भी सीरत पाक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बाद जो भी अहले बैत के ऊपर जो भी गुजरा वो हज़ारों किताबें लिखी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जब तक लोग अपना वक्त नहीं निकाल के टटोलेंगे नहीं, उसके ऊपर उसको एहसास करना है। आज मैं इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करबला मोहल्ला में खुद जब मौजूद था, मैंने खुद एहसास किया कि लोगों उधर जब आने के बाद, मदीना मुनव्वरा से करबला मोहल्ला तक आने के बाद, वहाँ पे इतनी शहादतें होने के बाद अगर आप या मैं खुद रहता तो मेरे ऊपर क्या गुजरता। ये एहसास जब इंसान करेगा इख्तलाफात बंद हो जाएंगे। लोग आज बयानबाजी में बहुत मशहूर है, लेकिन वो खुद अपने ऊपर लेके ये एहसास नहीं करना चाहते कि आज हमें जो भी मिला है
इन तमाम शहादतों से कुरान मिला है, दीन मिला है, ईमान मिला है, एक इंसानियत जो आज हम गुजार रहे हैं, आज हम इतना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी एक इंसानियत का मुजाहरा है। ये भी हमने एहसास करने से ही मिलता है, वरना आज के ज़माने में कोई लाखों रुपए खर्च करके लोगों को बिठा के समझाने के लिए किसी के पास फुर्सत है ही नहीं। लोग यही कहते हैं, लेकिन मेरे पास इसलिए फुर्सत है क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को मैंने एहसास किया मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मरने के बाद हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ता है, और सिर्फ किसी से सुन के अपना ईमान बना लेना ये सही नहीं है। एहसास करो कि आप अगर रहता और आपके घर वालों के ऊपर ये गुजरता तो आपका क्या रहता, सारी दुनिया आपकी मुखालिफ रहती तो आपके ऊपर क्या गुजरता, क्योंकि उस वक्त करबला वालों पे इतने शहादत होने के बावजूद उनके ऊपर कई इख्तलाफात किए गए थे, उनको कई तरह से सताया गया था, और वो भी उस खानदान से जिसका आप कलमा पढ़ रहे हैं, जिनको आप मान रहे हैं, जिसकी शफाअत का आप सोच रहे हैं कि क़यामत के दिन मुझको शफाअत मिलेगी, और उनके ऊपर आप इख्तलाफात कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हिसाब चुकाना पड़ेगा। बेहतर है कि आपकी ज़िंदगी में इसको सही कर लें। बस ये कोई टफ बोला होगा मैं, लेकिन यही हकीकत है, इसी से आपकी ज़िंदगी सही हो सकती है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है। इसलिए है ना, दामन हजरत ने जैसा कहा, दामन अहले बैत पकड़ो और कुरान मजीद फुरकान हमीद से आप है ना मजबूत अपनी ज़िंदगी बसाओ। ये दो ही चीज़ें आपको दुनिया और आखिरत दोनों में आपको कामयाबी देने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बयान से सिर्फ सुनना नहीं है, और वो भी मुझको बहुत पसंद है। हजरत ने जो बोला कि अगर ज़मीन वापस नहीं करी तेल तो बेनमाजी को आपको दफन करेंगे। आप समझ सकते हैं इसका क्या माना है। अगर कोई ये दो चीज़ों को समझ लिया, ज़िंदगी बेहतरीन कर ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपका एक पैगाम आज के इस कॉन्फ्रेंस से जा रहा है, बहुत अहम और ज़रूरी पैगाम है आज के हालात में। जी जी जी, माशाअल्लाह। आज की कॉन्फ्रेंस जो सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन की तरफ से मुनक़िद की गई, वो बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत कामयाब रही, और हमारे जो मुक़र्रिर ख़ुसूसी थे उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया। अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ सहाबा की मोहब्बत भी ज़रूरी है, चूँकि सहाबा ने ही अहले बैत से मोहब्बत करने का तरीक़ा सिखाया है। तो यही खुलासा है आज की। हाँ, मतलब ये है कि अहले बैत के साथ साथ सहाबा की मोहब्बत भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अहले बैत को से मोहब्बत का दावा करे और सहाबा को गाली दे, ये इसको मोहब्बत नहीं कहते, ये नाकाम मोहब्बत है। मोहब्बत ये है कि हुजूर ने सहाबा के बारे में फरमाया कि मेरे सारे सहाबी जो हैं सितारे के मानिंद है, उनमें से तुम जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और सहाबा ही ने तमाम लोगों से अहले बैत से मोहब्बत करने की तलकीन तरगीब की है। शुक्रिया। इस मौजू पर कॉन्फ्रेंस होती है तो बात यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जोर इत्तिहाद पर दिया गया आज के हालात में। क्या कहना चाह रहे हैं आप आज? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिलखुसूस से हमारे ज़ैनब एजुकेशनल ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं जनाब अतीक साहब, मैं उनके हवाले से जो 14 साल से लगातार ये अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन्होंने हरदम कोशिश की है कि यहाँ पर कोई दरार ना आए। बिलखुसूस कर्नाटक लेवल में जो बाहर से अंदर जो फसादात या नाइत्तिफाकियाँ या फ़िरक़ावारियत जो आ रही है, और जो अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ साल पहले तक यहाँ अहले सुन्नत वल जमात का अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो है वो माशाअल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक रहा। अब घर घर में जो है वो नाइत्तिफाकियाँ बाहर से आ गई हैं, तो इनकी ये जो काविशें हैं, इनकी काविशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आज का जो खिताब रहा हज़रत अल्लामा का, तो माशाअल्लाह इसमें तो इन्होंने माशाअल्लाह दोनों को जोड़ने की कोशिश की है कि आप अहले बैत अतहार से भी लगे रहें और सहाबा से भी लगे रहें, इसलिए कि दोनों ही से जो है दीन की पुख्तगी हमें
दीन को पुख्ता करना है। कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान साथ साथ में अहले बैत के है और इनको बताने वाले सहाबा इकराम हैं। जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे, दर वाले भी चाहिए, घर वाले भी चाहिए। हम अगर सिर्फ अहले बैत को ले लेंगे तो फिर सहाबा छूट जाएंगे जिन्होंने रिवायत की हैं, हजार रिवायतें। अगर सहाबा ही को अगर आप मशकूक करार देंगे, सहाबी अगर मशकूक हो जाए तो फिर रिवायतें मशकूक हो जाएंगी। और कुरान के ताल्लुक से भी जो बाहर मुल्क में जिस तरीके से कुरान के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ नाउज़ बिल्लाह, और जबकि कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मा ली है, उसी के ताल्लुक से ही आजकल जो है इस पर गुफ्तगू हो रही है। तो फिर ये चीज़ हम कोशिशें कर रहे हैं कि ये ऐसी गंदगी जो है वो यहाँ ना आए, हमारे हिंदुस्तान में ना आए। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम अपने इलाके की तो हम फिक्र करेंगे ही, तो लिहाजा हम चाहेंगे कि कर्नाटक लेवल पर मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत से यही गुजारिश करूंगा आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि हम लोग कोशिश ये करें कि अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं वो अकायद जो है दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय हम अपने अकायद को पेश करें। बस अगर ये काम हो गया तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारे ये 2 साल के अंदर जो कमी बेशियां हुई हैं, तो इफरा तफरी हुई है, इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये ख़त्म हो सकती है। खत्म हो अल्लाह तबारक व ताला। और बिलखुसूस आपका इसमें अब्दुल रऊफ साहब काफ़ी देरीना जब इनके बाल जो है वो काले थे उस वक्त से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने इत्तिहाद के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, हर जगह जहाँ भी अच्छे इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं वहाँ जा कर के इत्तिहाद की कोशिश करते हैं, उलमा से मुलाकात करते हैं, पूछते हैं। तो मैं यहाँ के जितने भी नाज़रीन हैं मैं उनसे कहूँगा कि हमारे इस जनूबी हिंद के जनाब अब्दुल रऊफ साहब के इस चैनल को जो है भरपूर ताउन फरमाएं और इसको जो है सब्सक्राइब भी करें और इसको जो है साथ भी दें, शेयर भी करें, इसलिए कि इन्होंने अपनी ज़ात का तो जो मफाद है वो अलग है, लेकिन इन्होंने मिल्लत इस्लामिया के लिए इन्होंने अपने वक्त को नहीं देखा, अपने पैसे को नहीं देखा, इन्होंने दिन रात लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अब्दुल रऊफ साहब को सेहत व आफियत अता फरमाए, नजर बद से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और इस चैनल को अल्लाह तबारक व तआला दीन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमेशा हम देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में कई पिछले चंद कॉन्फ्रेंस से भी इख्तलाफात नजर आए और आज की ये कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है? माशाअल्लाह आज की जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुकर्रर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना नूर मियां अशरफी साहब ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से अजमत अहले बैत और अजमत सहाबा इस अंदाज से पेश किया कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की अजमत बरकरार रखते हुए आपने बड़े ही लाजवाब अंदाज से बताया कि ईमान किसे कहते हैं, अकीदा किसे कहते हैं और किस अंदाज से हमें अकीदा रखना चाहिए। बड़ा ही लाजवाब खिताब आपका था और मैं हमारे सईदा ज़ैनब फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब और इस्माइल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस करके एक अच्छा पैगाम देने के लिए जो उलमाए किराम का मुंतखब किया, माशाअल्लाह हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रियासत कर्नाटक का मारूफ हो मशहूर इरादा जो इदारा है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, इसके ज़ेर एहतमाम 14वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो मरकज़ी सतह पर हुआ। माशाअल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद यही है कि आप मौलाना से सुन रहे थे कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनकी आल की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत ईमान की निशानी है। अगर हम ईमान वाले होना तो उनसे मोहब्बत करना, उनसे चाहत करना, उनके अहले बैत को चाहना, तो फरमा दिया है कि ईमान की निशानी है अहले बैत को चाहना। इसी मिशन को लेकर हम जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन हर साल जो है मरकज़ी सतह में अज़मत अहले बैत का एहतमाम करते हैं। तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से जो सज्जादगान, खानखा के ज़िम्मेदारान, दानिशुरान हिंदुस्तान के कोने कोने से तशरीफ़ फरमा हैं, इन तमाम का मैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि इत्तफ़ाक़ जो बता रहे थे आप, कुरान और अहले बैत जो लोग इसको नहीं थामते ये भटक जाते हैं। इसलिए कुरान शरीफ
जो मुकम्मल किताब है, इसको और अहले बैत को जो पकड़ के इनसे मोहब्बत करके रखेगा वो जुड़ के रहेगा। इंशाल्लाह क़यामत के दिन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हम अब कौसर पिएंगे, तो इनसे जो दूर होगा इन रास्तों पे भटक जाएगा। इसलिए यही हमारा मिशन है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का कि तमाम दुनिया में जितने भी हैं तमाम को सीधे रास्ते पर लाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के रास्ते पर लाना, अहले बैत की प्यार मोहब्बत के रास्ते पर लाना, सबके साथ सारे हिंदुस्तानी नहीं सारी दुनिया में प्यार मोहब्बत अमन सुकून चैन अगर कहीं मिलता है तो अहले बैत से मिलता है। यही पैगाम हम देते आ रहे हैं तमाम सारे हिंदुस्तान को नहीं सारी दुनिया को। अस्सलाम वालेकुम। सालत पर खड़े होकर हुजूर के असहाब को नमाज़ें पढ़ाई, उससे पूछिए हज़रत उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जिसके पीछे सालों तक खड़े होकर नमाज पढ़ी है, उस इमाम उम्मत से पूछिए, ऐ अबू बकर सिद्दीक आप बताओ हुजूर कहाँ मिलेंगे, हुजूर कहाँ मिलेंगे। याद रखिएगा सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस, क्या सिद्दीक पाक ने फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहल बैतिही, मोहम्मद अरबी को उनके घर वालों में तलाश कहाँ मिलेंगे। ये कौन कह रहा है, किसी और के फतवे की हाजिर नहीं रही, किसी और के मशवरे की जरूरत नहीं रही, जो सदाकत का दावेदार है, जो अपनी जगह उम्मत का इमाम है, कुदरत ने जिसको मसनद खिलाफत पैगंबर के बाद अता किया है, वो खलीफा अव्वल कह रहा है कि अगर हुजूर चाहिए और हुजूर को तलाश करना है तो अहले बैत की रिसालत में हुजूर को तलाश। अल्लाहु अकबर रिसालत या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है कि हुजूर को पाना है तो अहले बैत की रिसालत में हुजूर को तलाश। क्या बात है। अब कैसे, एक मौलवी साहब को मैंने सुना कुछ दिन पहले कह रहे थे बड़ी माजरत के साथ कि सादात को हुजूर अलैहिस्सलाम ने वारिस नहीं बनाया, वारिस उलमा को बनाया है, लिहाजा ऐसा है वैसा है। हमने कहा समझा दीजिए ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया है ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरी अहले बैत हैं, ये दोनों एक साथ रहेंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर जमा होंगे। ये ज़मानत तो गारंटी का माना क्या है, हुजूर ने जो फरमाया इनको पकड़े रखो, तो क्या पकड़े रखे, कोई पानी की बोतल है कि पकड़े रखे, ये कराने वाला कोई साउंड का ये स्टैंड है कि पकड़े रखे, पकड़े रखने का क्या माना है, माना ये है हुसैन इब्न अली से प्रेम करो, हसन से सियादत, हसन अलैहिस्सलाम से बुलवारी हासिल करो, इमाम हुसैन शहीद से ये सीखो कि जुल्म के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जाता है, पैदल हज कैसे किए जाते हैं। हुसैन छोटे थे, मैं इस्लाम के लिए मैदान में जाके तलवार नाना के जैसा है, क्या तेरे पास भी खदीजा जैसी कोई नानी है, क्या तेरे पास भी फातिमा जैसी माँ है। चलना याद आता है, वो मुस्कुराती है तो हुजूर का मुस्कुराना याद आता है, वो सखावत करती है तो हुजूर का सखावत करना याद आता है। अरे सरकार ज़हरा के हवाले से आयशा सिद्दीका ऐसा कह रही है, सिद्दीक़ अकबर ने कंधे पर उठाया हसन पाक को या अहले बैत की फजाइल को जो रिवायत आती है उसमें अक्सर तो सहाबा ही बयान करते हैं, सहाबा बयान सहाबा ही करते हैं। हमने देखा उमर ने यूं किया, हमने देखा उस्मान ने यूं किया, हमने देखा अबू बकर ने यूं किया। अगर सहाबा की जिंदगी पर ही हर्फ आ जाए और उनकी अमानत और दयानत पर ही हर्फ आ जाए तो फिर उनकी बातें माज़अल्लाह खारजी कह देंगे, अहले बैत के हवाले से भी सहाबा झूठ बोल रहे। इसलिए अहले सुन्नत ने सहाबा के वकार को संभाल के रखा है और मोहतरम इस शान के साथ संभाल के रखा है। ये हुजूर के शागिर्द हैं और हुजूर के शागिर्द होने की वजह से इनकी बातें वजनी होती है और इस शान की वजनी होती है कि अमीरुल मोमिनीन खुद कह रहे हैं, ए अब्दुल्ला तेरी और हुसैन की बराबरी क्या। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया ये तसव्वुर कौन दे रहा, खलीफा राशिद दे रहे हैं, कौन दे रहा है, खलीफा दोम दे रहे हैं। सरकार फारूक आजम का मसलक व मशरब ये है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की बात, वो बात तहजीब वाली रह गई। सरकार इमाम हुसैन पाक से जब मुलाकात हुई तो सरकार उमर ने कहा आते नहीं है, तो हजरत सरकार मौला हुसैन कहने लगे मैं आया था लेकिन आपके साथी आपके शहजादे अब्दुल्ला इब्न उमर, सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला बिन उमर
दरवाजे पर खड़े थे। सरकार की मोहब्बत और उनके इश्क के लिए और उनकी दुआओं के हम सब मोहताज हैं। अल्लाह इस महफिल के सजाते हैं, सांस सजाते हैं, अल्लाह इनकी उम्र को दराज करे। इसमें का मकसद ये है कि आलम इस्लाम में ईमान को ताज़गी बख्शे और अल्लाह इनकी उम्र को दराज करे, इनकी अकीदत को पाक करे, इनके कल्ब को नूर से मुरस्सा करे, अल्लाह इनके अहवायात को सेहत व आफियत रखे और इनकी मोहब्बत नहीं बल्कि इनकी दोस्ती और उनके इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम हाज़िरीन किराम, उलमाए किराम, मशाइख़ उस्साम और खतीब आज़म यहाँ पर नूर नियाज़ साहब की महरबी तकरीर को सुन रहा था। ऐसा मालूम हो रहा है मोती झड़ रहे हैं, रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, दिल मुनव्वर हो रहे हैं। अल्लाह इनको मर्दराज फरमाए, अल्लाह इनके इल्म और नमाज़े, अल्लाह इनके सेहत व आफियत फरमा और इनके बयान को अल्लाह ताला कबूल फरमा दे। हम सब के सब इनका एक बयान जो उन्होंने अपनी अक़ीदत का इज़हार किया, खलीफा राशिदीन का बयान किया, जो उमर फारूक की अज़मत को बयान किया, अल्लाह वसल्लम के वसीले से अल्लाह सेहत व आफियत फरमा दे। तमाम हाज़िरीन के तमाम उलमा मशाइख़ और अहले बरकत के आला अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, हम सबको नमाजी बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेज़गार बना दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम दे रहे हैं। फसुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। को कामयाब किया। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी लोग शहर बेंगलुरु के, रियासत कर्नाटक के कोने कोने से यहाँ तशरीफ ला के अज़मत अहले बैत की शान में शिरकत फरमाकर इस महफिल को कामयाब किया है। आप तमाम का सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೆಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿರವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಝೈನಬ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.